Okay, I'm so tired, but just have to do it, bro. Just have to do it. एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं छोड़ना. कम से कम नॉट फॉर द फर्स्ट मंथ. बिल्कुल भी नहीं. मैं करूँगा ही नहीं अभी. The things that are happening consistently is, one is this video, second is posting daily, third is journaling, fourth is a workout. Workout is not that consistent, and meditation is not at all consistent. But three things, yeah, they are good. Today, as of today, they are good. But I'm not working still. Like, yeah, today I did quite a bit of work, around 6 hours, but it's still not in a particular focused way that will help, and not in a efficient way at all. So like, it is something that can happen within 3 hours, but maybe it's because I don't know where to look today. So if I just look at the right direction, at the right place, I'll mostly do things much more efficiently. So yeah, tomorrow I have to look at that one thing, that I have to give myself that right direction. After that comes I'm just so tired right now. और ये इंग्लिश में बात करने की आदत निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि यार मतलब मैं नहीं हूँ कोई अंग्रेज. आई लाइक बीइंग इंडियन अ बिट इन द एंड. थोड़ा सा देसी पना, दैट हेल्प्स अ लॉट maybe, but yeah, मेरे को मतलब कंटेंट भी थोड़ा सा इंग्लिश में बनाना है. आई डोंट वांट टू कीप इट ओनली इंग्लिश में, बिकॉज थोड़ा सा है ना, रिलेटिबिलिटी चाहिए थोड़ा सा, वो लैंग्वेज का एक कंफर्ट लेवल, लैंग्वेज का एक मज़ा, एंड वो लैंग्वेज का एक बैरियर जो रहता है विद इंग्लिश, वो टूट जाता है, तो वो चाहिए. And some days if I want to, just make an entertaining video out of nowhere, just a casual comedy entertainment video, तो वो तो हिंदी में ही रहेगी, इंग्लिश में वैसे भी नहीं बनेगी वो. Therefore I just want to keep my options open. Number 1. इसके पहले मैंने क्या बात की, मैं नींद में हूँ तब से. इसके पहले मैंने बात की ऑफ, क्या बात की मैंने, क्या क्या चीज़ें रेगुलर चल रही है उस बारे में बात की. और एक तो मेरा सर में तेल है, तो नाउ अब मैं रेस्ट ले सकता हूँ. हाँ, feels good. Why does this feel like, I feel like a squirtle now. Squirtle. अब मैं बस बकवास कर रहा हूँ. So today let's talk about my fears. And my number one fear my whole life has been getting abandoned.
getting abandoned by all the people around me, and I have always I have always felt that I'm being abandoned, and that scares the shit out of me. And today I'm all alone, but this is a place where I'm finding myself, and I'm actually not abandoning me from myself anymore. I want to get authentic, I want to get real, I want to get original, I want to have this purest form of energy within me, or I want this, I want myself to be completely me today. So maybe this is the right time for this to come. Second thing I have been most scared of in my life has been कि मैं टूट जाऊंगा. Like I'll just break out of nowhere, and that has been mostly due to of the underlying truth that I have always been a bit vulnerable. A bit not, I have always been vulnerable. Everyone is always vulnerable in some ways or the others. I have just मैंने कभी वो एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी, और मैं बस प्रिटेंड करता था बाहर से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये वो दिखना दिखना. तो आज ऐसा लगता है कि तो वो टाइम पे कैसा था ना कि इसलिए मैं खुद पे रिलायबल था ही नहीं किसी भी चीज़ में, यू नो. मतलब क्योंकि मैं खुद की वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता था completely. You know अंदर से कि what are your weaknesses, you know what is going on. So I was never reliable on myself. आज भी नहीं हूँ, आज भी रिलायबल नहीं हूँ. सो वो खुद पे वो ट्रस्ट नहीं है, एंड therefore I never relied on my body much because I never gave it the time to recover. Joints healthy नहीं थे कभी, so I always adapted in a way that I don't get injured on the spot, but I came to a point where I just got injured from a very basic move. So two main things I want to focus on today is recovery, getting back to myself, and third would be building that reliability on myself कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बस कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं किसी और की. And that should come from a place of trust, not from a place of ego कि मैं खुद का काम कर सकता हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ. क्योंकि माई ईगो हैज़ ऑलवेज बिन कि मैं खुद का सब देख सकता हूँ, बट आई नेवर डिड. मैं थोड़ा ज़्यादा ही करने की कोशिश करता रहा हूँ ज़िंदगी भर. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा करते रहने की कोशिश करता आ रहा हूँ, which my body never accepted. तो मैं कभी खुद को उस तरीके से पुश कर ही नहीं पाया, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली खुद को बहुत पुश करते आया हूँ. इसीलिए इट हैज़ बिन सो स्ट्रेच्ड नाउ दैट देयर इज़ नो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एनीथिंग. तो इसीलिए नाउ आई वांट टू बिल्ड दैट रिलायबिलिटी ऑन माई सेल्फ कि हाँ मैं खुद से कर सकता हूँ, बट सही तरीके से, सही कंसल्टेशन लेके चीज़ों का, सही नॉलेज लेके चीज़ों की करना फिर भी खुद की ही है ऑब्वियसली, लेकिन चीज़ों को कंसिडर करके. एंड दैट इज़ समथिंग आई एम ऑलरेडी गुड एट. उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे लिए. इट्स जस्ट जब ईगो आ जाता था तब मैं सोचता था कि मैं सब कुछ खुद से ही करूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है. एंड और वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी. दैट्स व्हाई आई एम हियर इन द फर्स्ट प्लेस.
So yeah, that is the thing, building that reliability on myself, building that trust on myself, recover होना. And yeah, I just want to come back stronger from this thing now. And not some pretending to be stronger guy, someone who is actually strong. और वो इंसान को देख के ही समझ में आता है तुम अंदर से भी स्ट्रांग हो या नहीं. मैं अंदर से बस इतना वीक रहा हूँ ज़िंदगी भर कि मैंने देखा ही नहीं. आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग. एंड मोस्ट ऑफ माई इनसिक्योरिटी यूज टू कम फ्रॉम दिस ओनली, दैट whenever I used to meet people first, I had tended to be so confident and people used to like me, so I kind of have that kind of personality within me, kind of. But whenever people got to know about me even a little bit, तब मैं बहुत डर जाता था और मेरी इनसिक्योरिटी यूज टू पुश देम अवे फ्रॉम माई सेल्फ. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट एनीमोर. मुझे मतलब आई डोंट वांट टू react from a place of insecurity. I don't want to react from a place of weakness. I don't want to react from a place of, oh, I cannot do this. I want to build that belief, trust, a good mindset कि भाई कोई भी सिचुएशन हो ना, मैं निकल जाऊँगा. आज की भी जो सिचुएशन है मैं इसमें से निकल जाऊँगा कुछ भी करके. देयर इज़ नो वे आई एम स्टॉपिंग. और चीज़ें खुद के तरीके से मैंने कभी नहीं की, बिकॉज आई नेवर एवर एवर वैल्यूड माई सेल्फ ड्यू टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमास. नेवर वैल्यूड माई सेल्फ. सो इफ इट्स अ बेसिक जनरल प्रॉब्लम, आई हैड डू इट माई वे, because at that moment that's the only way you can do things. And I've always been that fast guy who used to understand things well. अब कुछ चीज़ें नहीं समझती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई नेवर वैल्यूड माई सेल्फ इनफ कि मैं खुद की सुनूँ कम्प्लीटली. बट अब ऐसा है ना कि मुझे बस खुद में वो भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और अपने तरीके से कर सकता हूँ. लाइक इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू इट द बेस्ट वे पॉसिबल बाय लर्निंग, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स. अगर मैं कोई गेम ऐसी नॉर्मली खेलने भी जा रहा हूँ, मुझ में है कि मुझे भाई बेसिक्स पहले जानना है. पहले मैं हगूँगा लेकिन बाद में मैं अच्छा करूँगा. और नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट्स जस्ट हु आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग. और मुझे वो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू ना, मुझे जब भी कुछ करना है ना, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड देन एग्जीक्यूट इट. मैंने ये चीज़ कभी नहीं किया. आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट बट आई नेवर एग्जीक्यूटेड इट. दैट हैज़ बीन द मेन प्रॉब्लम. Execution has been the main problem. I've never executed only. Because when you learn from the best, you get the best things on the table, and then it's up to you what should you choose and implement in your way. So yeah, that's why I've always believed that learn from the best, you can become the best. And I don't count on anything now कि भाई मुझे ज़्यादा hard work नहीं करना है. What I want today is recovery, ग्राइंड एंड अ बैलेंस इन लाइफ. मतलब अगले 6 महीने रिकवरी फेज तक तो एक प्रॉपर बैलेंस ही चाहिए चीज़ों का, और कंप्लीट चेंज ऑफ थिंग्स चाहिए. माइंड सेट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, द वे आई सी माई सेल्फ, द वे लाइफ इज़ गोइंग. मेरे को ये सब चीज़ों में एक ड्रास्टिक चेंज लाना है अब. और वो लाना भी मतलब एक पूरे नए तरीके से है. खुद को एट अ कोर तुम नहीं बदल सकते, और एट अ कोर मैं क्या हूँ मुझे पता ही नहीं है. क्योंकि ये जो मैं हूँ, दिस इज़ ओनली दिस मच ऑफ द गेम दैट आई हैव बीन प्लेइंग. इफ आई जस्ट
मेक द गेम इन्फिनाइट, आई जस्ट डोंट नो कि मैं कैसे करूँगा चीज़ें. मतलब हाउ विल आई एक्चुअली डू अ पर्टिकुलर थिंग. और मुझे इस चीज़ के लिए ओपन रहना है. तो ऐसा नहीं है कि आई कीप सर्टन एक्सपेक्टेशंस. आई वांट टू सी दैट हाउ थिंग्स गो व्हेन आई अलाउ माई सेल्फ टू बी कम्प्लीटली माई सेल्फ एंड देन एक्सेप्ट थिंग्स. बिकॉज इफ यू आर इफ़ यू पुट अ कंस्ट्रेन ऑन योर सेल्फ और फिर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो तो तुम घुट घुट के मर जाओगे भाई. मुझे वो कंस्ट्रेंट नहीं डालना है. आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ एज मच एज पॉसिबल. और वो करते हुए आई वांट टू सी कि मैं चीज़ें कैसे कर पाता हूँ एक्चुअली. सो या दिस इज़ द थिंग. तो आज मैंने क्या क्या बात की. लेट्स स्टार्ट विद दैट अगेन. क्योंकि मैंने आज बहुत कम टाइम दिया है टू एक्चुअली प्रोसेस दिस थिंग्स. So I started with what am I doing regularly. Then I went to how do I want to take things forward. This is not what I went through. But then I started about my fears, abandonment, insecurity, not valuing myself at all, and not being for myself. And after addressing these things, I went through how do I want to carry things forward now, and how open I want to be, and at the same time how accepting I want to be of myself. I don't want to change myself at the core. I just want to change everything that is not me and become everything that is me. अगर ऐसा चीज़ कोई पॉसिबल है तो नंबर 1. फिर आई वांट अ ड्रास्टिक चेंज इन लाइफ. लेकिन मुझे खुद को 24/7 पुश नहीं करना है. आई वांट टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस इन लाइफ टुडे. रिकवरी भी चाहिए. रिकवरी के लिए खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मैं करने के लिए रेडी हूँ. देन इन बिटवीन वी टॉक्ड अबाउट I don't even remember what we talked about now. I feel good while talking on camera now, but मुझे डेली मूवमेंट में ऐसा बहुत इजीली जैसे मैं कैरी फॉरवर्ड हो जाता हूँ. मैं अपने सिस्टम को टाइट रखता हूँ. मेरे पैर ऐसे टाइट हो रहे हैं व्हेन आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. ये सब चीज़ें जब होती है ना, देन आई स्किप लाइफ में जो हो रहा है उस चीज़ को. एंड उससे क्या होता है ना कि मैं जो चीज़ प्रेजेंट में रह के बहुत अच्छे से कर पाता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल शूटिंग. अगर मैं बस एक क्लिप के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ उसको करने के पहले, एंड देन आई डू इट इन द वे दैट आई वांट टू, मेरी मेहनत एक्चुअली आधी हो जाएंगी वो शूटिंग करने के लिए. मैं बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते आया हूँ ज़िंदगी भर. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है. मुझे बेसिक्स सीखना है, बेसिक करना है और उसके ऊपर बिल्डअप करना है. ठीक है, अगर मुझे कभी 8 घंटा दिन में ट्रेन करना है फिजिकली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो मुझे करना रहा तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे करना है तो ना. इफ़ इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि भाई दैट आई डिपेंड ऑन दैट थिंग, उसके बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो आई जस्ट पुट अ प्रेशर ऑन माई सेल्फ. एंड उससे क्या होगा ना कि ना ही वो चीज़ होगी और ना ही मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँगा एज सच. तो मुझे कुछ भी करना है ना, उसको फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रेशर नहीं करना है. आई वॉन्ट टू डू द बेसिक्स राइट. आई वॉन्ट टू बिल्ड अप अ गुड फाउंडेशन. और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है. मुझे जितना ज़रूरी है ना उतना करना है आज. और वो होता ही प्रेजेंट मोमेंट में रह के और अवेयरनेस के साथ में है कि भाई चीज़ें होती कैसी हैं. उसके लिए वो उस तरीके से देखना है और करना है. बस यही है. सो 2 seconds left. 1 2 बाय.